احتجاج کے نام پر پی ٹی آئی کے فساد سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ، عوام کے جان و مال اور قومی املاک کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری۔ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی پابند، سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات، رینجرز اور ایف سی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت خصوصی اختیارات تفویض، قانون کی عملداری یقینی بنانے کا عزم۔ احتجاج کے نام پر پی ٹی آئی کا فتنہ، فساد، انتشار اور ملک دشمنی۔ حلیف گروہ فتنہ الخارج کی جانب سے بڑے شہروں میں تخریب کاری کا منصوبہ۔ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ ملک دشمن عناصر کی مدد کے لیے افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں داخلے کی اطلاعات۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس رہنے کے احکامات۔ صوبائی حکومتوں کو صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور سخت سیکیورٹی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ انتشار پسند گروہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ترقیاتی عمل کو روکنا اور ہر اہم قومی موقع پر احتجاج ان کا وتیرہ ہے۔ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ یہ لوگ منصوبہ بندی سے لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور پارا چنار کا دور بھول کر فتنہ اور فساد میں مصروف ہیں۔ وفاق پر حملہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی۔ یو ٹرن اور دوہرا معیار، پی ٹی آئی کی سیاست، غلامی نامنظور کے نعرے لگانے والے اب امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ملک میں عدم استحکام اور انتشار پھیلانا ہے۔ گوشہ بی بی کا بیان مذموم مقاصد کے لیے ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل احتجاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وفاق پر چڑھائی کی بجائے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز لائن میں گفتگو۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج ورک فرام ہوم کرے گی۔ انقلاب لانے والے ابھی تک سو رہے ہیں۔ احتجاج اور مارچ صرف واٹس ایپ گروپوں میں نظر آ رہا ہے۔ عوام فتنہ و فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو احتجاج میں شرکت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ چند مجبور ٹولیوں کے سوا کوئی احتجاج کا حصہ نہیں بنے گا۔ فائنل مارچ یا انقلاب میں بشرا بی بی کیوں شریک نہیں ہو رہی؟ اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 200 سے زیادہ شرپسند گرفتار، اسلحہ برآمد۔ بارودی مواد 24 نومبر کو احتجاج کے دوران استعمال کیا جانا تھا۔ گرفتار شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع۔ بلوچستان میں زراعت کے فروغ کے لیے حکومتی کاوشیں۔ 2022 کے سیلاب میں تباہ ہونے والے واٹر چینلز بحال۔ 57,000 ایکڑ زرعی زمین مستفید۔ پیداوار میں سالانہ 1 ارب روپے کا اضافہ اور ہزاروں کسانوں کی معاونت ہوگی۔ زرعی ترقی سے بلوچستان معاشی ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ 1971 میں ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان۔ بھارت نے مکتی باہنی کو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف حملوں میں استعمال کیا۔ 25 مارچ 1971 کو بنگالیوں نے بغاوت کی۔ مکتی باہنی اور انڈین آرمی کے ساتھ مل گئے۔ بہاریوں کی املاک اور آبادیوں پر حملہ، قتل عام۔ مشرقی پاکستان کے 17 میں سے 14 اضلاع کے محب وطن پاکستانیوں کو شہید کیا۔ 5.5 لاکھ بہاریوں کو قتل کر کے الزام پاک فوج پر لگا دیا۔ شیخ مقیم ممبر بہاری کمیونٹی۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز کے لیبنان پر بھی حملے، بیروت میں 24 افراد شہید، 45 زخمی۔ یورپی یونین کے رکن ممالک بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ سربراہ خارجہ پالیسی جوزف بوریل۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کوہستان، بٹگرام، ترغر اور مانسیرہ سمیت مختلف علاقوں میں ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ہلکی برف باری متوقع۔ میدانی علاقوں میں رات اور صبح کو سموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان۔
गुज़श्ता 24 घंटे में मालम जब्बा, तख्भाई और बालाकोट में बारिश रिकॉर्ड। तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया, हजारों घरों को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। साहिली इलाकों में तेज हवाएं, शदीद बर्फबारी, मुतादिद इलाकों में बारिश से सैलाब, शाहराहें बर्फ से ढक गईं, निजाम जिंदगी मफलूज, परवाज़ें मंसूख, रेल शेड्यूल भी मुतासर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज। बुलावायो में पहला मैच, मुकाबला 12:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग, अल हिलाल का 46 मैचेस से जारी नाकाबिले शिकस्त सफर तमाम। दिफाई चैंपियन को अल खलीज ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल हिलाल के लिए मई 2023 के बाद ये पहली शिकस्त है। पॉइंट टेबल पर अल हिलाल 28 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। बेल्जियम के थैरी न्यूवेल ने पहली मर्तबा वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। चैंपियनशिप सीजन की आखिरी रेस रैली ऑफ जापान बर्तानिया के एल्फन एवंस ने जीती। थैरी 6ठे नंबर पर रहे। न्यूवेल 242 मजमूई पॉइंट्स के साथ ड्राइवर्स टाइटल के हकदार करार पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बुलेटिन में अहम खबर आपको देंगे कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी। किसी को भी मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की रियासत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। PTI एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया है। रेंजर्स और FC को इंसदार दहशतगर्दी एक्ट के तहत खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। नेक्टा ने फितना अल खारिज की मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। फितना अल खारिज PTI के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा के मुताबिक दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं जो बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्टा ने सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त इकदाम करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान के दुश्मनों और PTI की सोच एक है, तरक्याती अमल को रोकना और हर अहम कौमी मौके पर एहतजाज इनका वतीरा है। ये लोग मनसूबाबंदी से लाशें गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमनो अमान पर तवज्जो देने की बजाय एहतजाज और फसाद में मसरूफ हैं। अली अमीन गंडापुर पारा चनार का दर्द कैसे भूल सकते हैं। विफाक पर हमला करने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान से ताउन बढ़ाना चाहता है तो एन उसी तारीख पर एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। चीन के सदर आ रहे थे CPEC के लिए, आपने तब धरने दिए। SCO हो रही थी, आपने तब एहतजाज का ऐलान किया। अब बेलारूस के सदर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं बेलारूस के, पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, उसी डेट पे जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। हमारी मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई पिछले साल 32%, इस साल 6.9%। इस माली साल के पहले क्वार्टर में $8.8 अरब की
रेमिटेंसेज उन्होंने पाकिस्तान भिजवाई हैं। ये वो फिगर्स हैं, कोई बोतान, कोई इल्जाम इसको रद्द नहीं कर सकता। अता तारा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर गोहर से राबता हो चुका है, अब किसी ने एहतजाज किया तो गिरफ्तारियां भी होंगी। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है, और इल्लीगल कहने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है, किसी को अमन अमान हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, शहरियों के जानो माल को जो है उसको नुकसान पहुंचाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पारा चनार जहमत तक नहीं की कि वहाँ जाकर लोगों की दादरसी कर सकें। 37 लाशें कुरम में उठाई हैं, क्या वजीर आला ने ये जहमत की? आप कुरम जाएं, कुरम जाके लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करें और लोगों से पूछें कि भी आपका क्या दुख दर्द है। मैं सिक्योरिटी बीफ अप करना चाहता हूं। जो फौजी अफसरान शहीद हुए हैं उनके बच्चे यतीम हो गए क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। क्या वो कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं कि आप लश्कर कशी करें एक वफाक के ऊपर? आप पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करते केपी के सूबे के अंदर पिछले 13 साल के अंदर, उनको ये दहशत गर्दी के जंग के में जो ट्रेनिंग्स हैं वो दिलवाते। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा अवाम की हिफाजत करते हुए पाक फौज के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। Of the senior players got the rest, but the things what we found from the DES tournament as well, inshallah, hopefully you're going to get them, inshallah. Mohammed, have a great game. Thank you. Right. Craig, lost the toss. You're probably going to have a bowl as well? Yeah, I think so. I mean, the wicket does look good, but I think maybe overhead conditions may be favouring a ball first. How's the team going? Coming to Bulawayo, I haven't played a lot of ODI cricket here, nearly over a year in the qualifiers. How's the ODI setup? How's the mentality? What sort of cricket would you like to play in this series? I think our week's preparation has been really good. I think guys brought a lot of intensity, a great attitude towards this week's training. And I think looking into these 3 ODIs, I think we can expect a little bit more of that as well. The mood in the camp? Yeah, it's really good. I think, it's nice to be down in Bulawayo to play a bit of cricket down here. So I think everybody's looking forward to some ODI cricket. Any exciting inclusions in your playing 11 today? Yeah, obviously Brian Bennett is making his debut today in ODIs, as well as Trevor Gwandu. They've played a few T20s, so they are familiar, but, all the best to them. Slug, Craig, have a good game. Cheers, thank you. Cheers. News out in the middle is that Pakistan have won the toss and they want to have a bowl first. बुलावायो में 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच, पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, जिम्बाब्वे को बैटिंग करने की दावत दी। मैच दिन 12:30 से देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहां पर बयान शामिल करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, जिनका यह कहना है कि पीटीआई मुल्क में फसाद और अदम इस्तेहकाम चाहती है। बुशरा बीबी का बयान मजमूम मकासद के लिए है। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। पीटीवी न्यूज के प्रोग्राम न्यूज लाइन में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पीटीआई इंतशार और अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर कारबंद है। हमारी सियासत में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें दे वांट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, दिस इज देयर एजेंडा। और मोहतरमा बुशरा बीवी साहिबा जो हैं वो उन्होंने जिस किस्म की स्टेटमेंट दी है, देखें जी, उन्होंने मजहब को भी इन्वॉल्व किया है और सियासत को भी इन्वॉल्व किया है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी पाकिस्तान जो है उन्होंने एक ही तीर से 3 शिकार करने की कोशिश की है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती वसाइल को एहतजाज के लिए इस्तेमाल करती है। वजीर आला अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देने की बजाय वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जाती, तो उनको कहा गया कि जी जब आप जलसे करते थे तो जलसों की इजाजत दी जाती थी, आप अब जलसे नहीं कर रहे हैं, आप हमलावर हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पे, और एक दूसरे को बाकायदा कह के, ये नहीं कि हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, कह के कि हम आ रहे हैं, हम लश्कर लेके आ रहे हैं, हम पंजाब के लश्कर लेके आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद लश्कर लेके आ रहे हैं, बाकायदा इट वाज प्रोनाउंस्ड, इट्स ए प्रोनाउंसमेंट। आई एम कोटिंग अनकोटिंग अली अमीन गंडापुर।
वजीर दिफा ने कहा कि PTI की कॉल पहले की तरह नाकाम होगी। अवाम इनके मजमूम मकासद को बखूबी जान चुके हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर में PTI के एहतजाज के हवाले से कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। असमा बुखारी ने कहा कि एहतजाज और मार्च व्हाट्सएप ग्रुपों में नजर आ रहा है। एहतजाज करने वालों के बच्चे इनकलाब का हिस्सा नहीं बनते, वो आम आवाम को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि बुशरा बीबी ने झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा किया। बुशरा बीबी की बेबुनियाद बातों ने दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को दाव पर लगाया। सूबाई वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शिरकत पर मजबूर किया जा रहा है। PTI की लीडरशिप आज वर्क फ्रॉम होम करेगी। बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की कि मुस्लिम उम्मा के हमारे एक बड़े दोस्त मुल्क को जिन घटिया बातों के ऊपर उन्होंने जो है वो उनको ब्लेम करने की कोशिश की। ये तकलीफ ये है कि सरमायाकारी क्यों आ रही है जो है वो पाकिस्तान के अंदर, और जो ये एक फाइनल कॉल जिहाद मार्च, पता नहीं कौन कौन सा मार्च जो है, उसमें वो दीनदार माँ ना खुद शामिल हो रही है, ना उनका शौहर शामिल हो रहा, ना उनके साबका और मौजूदा कोई बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो ये कौन सी दीनदारी है। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि शरपसंद कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर में अमन मान को बरकरार रखने और 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र शरपसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में PTI के 200 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा भी बरामद किया गया है, जो 24 नवंबर को एहतजाज के दौरान इस्तेमाल किया जाना था। असलहे की बरामदगी एहतजाज के दौरान शरंगेजी का इंदिया देती है। गिरफ्तार शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक ऑपरेशंस जारी हैं। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक चल रहे हैं और PIA तमाम एयरपोर्ट्स पर बिला तातुल खिदमात यकीनी बना रहा है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 3 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में हक आफीदी और खैबरे और गुलजान मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 1 खारजी हलाक और 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जिला खैबर के इलाके बाड़ा और जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना अल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी की जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर नौजवानों के साथ है। मुल्क से खारिज और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब करने और दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। उन्होंने 3 खारिज को जहन्नुम वासिल करने और सरहद से दरअंदाजी रोकने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ करते हुए दहशत गर्दी के इफरीत के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। नाज़रीन, रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। चक्री के करीब CTD और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में फितना अल खारिज के 3 खतरनाक दहशत गर्द हलाक और 2 फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक CTD ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की थी। दहशत गर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान 3 दहशत गर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। इनके कब्जे से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफलें, IED, बॉम्ब, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। CTD टीमों ने इलाके की नाकाबंदी कर ली। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल भी जारी है। दहशतगर्द रावलपिंडी पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे।
कुछ दीगर खबरों को भी यहाँ पर बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी के सऊदी अरब के खिलाफ बयान की मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से मजम्मत जारी है। उलमा इकराम ने बुशरा बीबी के बयान को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात को सबूताज करने की मकरूह साजिश करार दिया है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। सऊदी अरब ना सिर्फ पाकिस्तान का बरादर मुल्क है बल्कि दुनिया भर के मुसलमान इस खित्ते को अकीदत की निगाह से देखते हैं। एक सियासी जमात की तरफ से इस मुहतरम मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करके अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश को फैसलाबाद के उलमा इकराम भी काबिल मुजम्मत करार देते हैं। कोई भी मुहिब वतन इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और कोई भी पाकिस्तानी मुसलमान जब भी सऊदी अरब का नाम आता है उसके जहन में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की अजमत और शान उसके दिल में होती है और उसकी नजरें और दिल उसकी तरफ झुक जाता है। सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं इसमें कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हर आड़े वक्त पर उन्होंने हमारी मदद की है, मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से उनसे हमारे ताल्लुकात जो है वो ऐसे हैं कि जिसके अंदर कोई रखना डाला नहीं जा सकता। मोहतरमा, एक तो दो मुल्कों को आपस में लड़ाने की एक मजमूम साजिश कर रही हैं और उसके साथ साथ अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करते हुए मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। जिस तरह इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में उलमा पर, मजहबी लोगों पर तशद्दुद किए, मसाजिद मदारस का तकद्दुस पमाल किया, उस वक्त भी ये मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करते थे। उलमा इकराम का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरीना ताल्लुकात में किसी भी सूरत रखना नहीं डालने दिया जाएगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। ये तुम किसको उठा कर लाए हो? यह है वो बयान जो गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। पीटीआई को बुशरा बीबी के इस गैर जिम्मेदाराना और मज़ाक खेज बयान पर शदीद तनकीद का सामना है। बुशरा बीबी का वीडियो बयान पीटीआई के गले की हड्डी बन गया है। अपनों ने भी बयान से ला ताल्लुकी जाहिर कर दी है। बयान वापस लेने और कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अरसलान असद अपनी इस रिपोर्ट में। ये तुम क्या उठा के ले आया? ये तुम क्या उठा के ले आया? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सियाने कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। बानी पीटीआई की तीसरी ज़ौजा मोहतरमा ने अपने पहले सियासी बयान से ही अपनी जमात के लिए माशाअल्लाह ऐसी नेक नामी कमाई कि मुखालफीन तो छोड़ें, अपनी पार्टी के रहनुमा और लोग भी ऐसी भोंडी कोशिश से किनारा कश नजर आते हैं। ये तुम क्या उठा के ले आया? इस बयान का सामने आना था कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ये तुम क्या उठा के ले आए हो हैशटैग के साथ टॉप ट्रेंड करने लगा। पीटीआई की ऐसी ट्रोलिंग की गई कि पार्टी की सीनियर क़यादत को लेने के देने पड़ गए। किसी ने बुशरा बीबी के बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और हमदर्दी हासिल करने की भोंडी कोशिश करार दी तो किसी ने लिखा कि इस हीरो को तलाश करना चाहिए जिसने बुशरा बीबी उर्फ घरेलू खातून को ये बयान देने का मशवरा दिया था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि क्या पीटीआई वालों ने पाकिस्तान के तमाम दोस्त मुल्कों को नाराज करने का ठेका ले लिया है? ऐसे में पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर अपनी बानी की तीसरी ज़ौजा मोहतरमा के अजीब व गरीब बयान की सफाइयां देने की नाकाम कोशिश करते नजर आए। असल में पीटीआई इस वक्त बेचैनी से ऐसे बयानी की तलाश में है जिससे वो बता सके कि बाहर से मदाखलत की वजह से बानी पीटीआई को इक़्तिदार से निकाला गया। यही वजह है कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है और फिर उसी अमेरिका के नौ मुंतखब सदर से मदाखलत की भीख मांगी जाती है, तो कभी हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने वाले अजीम बरादर मुल्क सऊदी अरब को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जाती है। तो बात शुरू होती है अमरीकी साजिश से। हम सबको याद है कि खान साहब ने किस तरह जलसे में खड़े होकर कहा कि जी अमेरिका से खता है, अमेरिका ने साजिश की है। पीटीआई वालों ने कहा हाँ बिल्कुल अमेरिका ने साजिश की है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बयान चेंज हुआ, कहा कि नहीं जनरल बाजवा ने साजिश की है। पीटीआई वालों ने कहा हाँ जनरल बाजवा ने साजिश की है। फिर बयान चेंज हुआ, फिर कहा कि नहीं जी लंदन प्लान हुआ है, लंदन प्लान जो था उसमें साजिश हुई है मुझे निकालने की। तो पीटीआई वालों ने कहा अच्छा जी वो था। फिर उसके बाद बयान मजीद चेंज हुआ। लेकिन ये कोशिश अब उल्टी पड़ गई। ऐसे मौके पर कहा जाता है कि अब क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो पीटीआई क़यादत के लिए बयान को वापस लेते हुए कौम से माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।
یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ الفاظ غیر مہذب اور غیر سفارتی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی اس مذموم کوشش پر عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، کیا اٹھا کے لے آیا۔ یہ ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ، نہ شوہر کی عزت کرنا جانتی ہے اور نہ ہی صفاتی آداب کو سمجھتی ہیں۔ ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا کیا انہیں زیب دیتا تھا؟ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا۔ ان کے الفاظ سے پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی ہے اور عوام ایسے غیر ذمہ دارانہ اور متعصبانہ بیان کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ بشرا بیوی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سعودیہ ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا بھائی چارہ ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں ملک پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا تو سعودیہ نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا کچھ ریلیز لینے کے لیے ایسا بیان دیا جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی بلکہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں اس کو بھی ذکر پہنچا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ بشرا بی بی نے ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو بیان دیا ہے اس سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ جی میں یہ بشرا بی بی نے جو بیان دیا اس کی میں پرزور طریقے مذمت کرتا ہوں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تادیبی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش نہ کر پائے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر کی طرح اہل لاہور بھی پی ٹی آئی رہنما کی طرف سے سعودی عرب کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان پر سیخ پا ہیں۔ لاہور میں علماء کرام اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کے تاثرات کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں محمد سفیان کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بشرا بی بی کا پاکستان کے درینہ دوست ملک سے متعلق متنازع بیان سے ملک کی طول و عرض میں تشویش کی لہر توڑ گئی ہے۔ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس بیان کو نہایت غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے اسے ملک دشمنی قرار دیا ہے۔ محترمہ آپ نے سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر میں سمجھتا ہوں ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے جس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بغیر ثبوتوں اور بغیر گواہوں کے ایسی بات کر دی جس میں لاکھوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اختلافی بات جو ہے نا وہ اوپن نہیں کرنی چاہیے، یہ لیکن یہ جو بیت اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے یہ تو ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ سماجی کارکن، صحافی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے ملک کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ میں ایک عرصہ گزارا ہے وہاں کے بڑی اچھی طرح سے اس قوم کو جانتا ہوں اور جتنی محبت وہ لوگ پاکستان سے کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام سے کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ میرے خیال سے ایک مطلب کہ پری پلان کا ایک اس موقع پہ آ کے بات کرنا ایک پری پلان میں تو کہوں گا، میں اسے پاکستان کے مفاد میں کسی حد تک بہتر نہیں کہوں گا۔ یہ بڑا غیر مناسب بیان تھا اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ سعودی عرب سے بہت گہرے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی غلط بیان دیا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریاستی امور اور ملکی معاملات سے لا علم شخصیات کو ریاست کے مفادات کے مخالف بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے حوالے سے متنازع بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ خادم حرمین شریفین جہاں پہ پوری دنیا اسلام کا مرکز ہو، جہاں پہ اللہ رب العزت کا مقدس ترین گھر حرم شریف ہو، کعبۃ اللہ ہو، جہاں روضہ رسول ہو، وہاں کے حکمران یہ سوچ رہے ہوں گے ہم ریاست کو کلوز کر رہے ہیں شریعت کو ریاست سے، تو یہ بات آپ نے کر کے پوری عالم اسلام کے اندر ایک انتشار پیدا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خرافات ہیں کہ ان کے اندر کی نیت بارہا یہ ان کی زبان پہ آ چکی ہے، تو اب یہ قوم کے سامنے عیاں ہو چکے، نہ یہ پاکستان کے خیرخواہ ہیں، یہ نہ کسی استحکام چاہتے ہیں اس ملک میں۔ ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان شیخ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عوام کو دھرنوں اور گالم گلوچ سکھایا ہے جو نہ ملک کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی نوجوان نسل کے کردار کے لیے۔ بشرا بی بی جو خود امانت میں خیانت کی مرتکب ہوئی ہیں، وہ پاکستان اور سعودی عرب کے لازوال تعلقات کو خراب کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ بی بی بشرا نیازی صاحبہ اپنے پیغام میں شریعت کا ذکر کرتی ہیں، مدینہ شریف کا ذکر کرتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے پیدل
मदीने शरीफ जाने का उनसे मुद्दाना गुजारिश भी है, उनको वार्निंग भी है कि मेहरबानी करके हमारे मजहब इस्लाम को, मदीना शरीफ को अपनी मनफी सियासत, उस मनफी सियासत से जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, उस मनफी सियासत जो कि धरनों पे बेस करती है, जो कि नौजवानों को उकसाने पे बेस करती है, उससे हमारे मजहब को और हमारे मदीना शरीफ को दूर रखें। और अगर आपने जिक्र करना ही है तो आप मुकम्मल जिक्र करें, आप बताएं, कौम के सामने लेके आएं कि कितने करोड़ों के तहाइफ, कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स आप सऊदी अरब से लेके आए जो कि आपने तोशा खाना में जमा नहीं कराए। अमानत में खयानत एक गुनाह है, अमानत में खयानत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और पाकिस्तान का कौमी चैनल पाकिस्तान टेलीविजन जो तकरीबन हर घर में देखा जाता है, उसके किरदार के हवाले से कुछ बात करेंगे। दौरे जदीद में मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने आगाज से लेकर अब तक माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को न सिर्फ उजागर किया बल्कि ऐसे प्रोग्राम भी पेश किए जिससे लोगों को मालूमात हासिल हुई हो और वो प्रोग्राम उनकी इस्लाह का भी जरिया बने हों। तफसीलन ये सब डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। नवंबर 1964 में कायम किया जाने वाला पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क न सिर्फ मुल्क की नजरियाती सरहदों का मुहाफिज है बल्कि अपने प्रोग्रामों के जरिए नाजरीन को मेयारी तफरीह, तालीमी, मालूमाती और माशरे में मसावात, रवादारी, मजहबी हमआहंगी के फरोग और जहनों की आबियारी में भी अवाइल से ही खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसके बायस आज भी PTV के ड्रामे, तारीख साज शख्सियात पर मबनी पेश करदा थिएटर, मालूमात आम्मा के प्रोग्राम कसौटी और सनसनी और हिजान से मिन्हा खबरें अवामुन नास की जहनी आबियारी में शुरू ही से अहम किरदार अदा करती रही हैं, जबकि आज भी नशियाती यलगार की दौड़ में PTV अपने नाजरीन के लिए मुतवाज़िन और तामीरी किरदार सर अंजाम दे रहा है। कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ख्याल रखा कि इस पूरी कौम को एक जोड़े रखें। हमारे कल्चर की जो डाइवर्सिटी है ना, मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ उनकी अक़दार, मुख्तलिफ उनका रहन सहन क्या है, उनकी तहजीब क्या है, उनकी गुफ्तगू क्या है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बरती जाती हैं, उनका लिबास क्या है, उनकी मौसीकी क्या है, उनके इल्म क्या है, उनके अदब में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो सारी चीज़ों को जोड़ के एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। PTV ने असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ अपने आप को ढाला है और HD के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी दूसरे नेटवर्क से तामीरी अंदाज में मुसाबिकत जारी रखे हुए है, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमेशा बैनुल अक़वामी और मुल्की नशरियात में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, जबकि यही वजह है कि आज भी निजी चैनल पर अहम मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात ही नशर की जाती हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। PTV ने हमेशा अपने प्रोग्राम्स के जरिए उन अक़दार और रिवायात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जो पाकिस्तानी मुआशरती साख्त की नुमाइंदगी करते हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे अदनान शाह अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीविजन ने मुल्क की सकाफती और सियाहती विरसे की हिफाजत और फ़रोग़ में रोज़े अव्वल से ही ग्रान कदर खिदमत अंजाम दी है। तकरीबन पौन सदी पर मुहित इस सफ़र में PTV ने ड्रामों और दस्तावेज़ी प्रोग्रामों की मदद से नाजरीन को न सिर्फ मेयारी तफरीह फराहम की बल्कि देही और शहरी महाशरत, रस्म व रिवाज और ख़ानदानी रिश्तों की खूबसूरतियों को भी बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता लिखारियों, हिदायतकारों और अदाकारों ने मिलकर स्क्रीन पर पेश किए जाने वाले ड्रामों में हकीकत पसंदी का रंग कुछ इस अंदाज से भरा कि हर ड्रामा और कहानी हमारे माशरे की जीती जागती तस्वीर बनकर उभरी। माशरे के सकाफती पहलुओं को उजागर करने के साथ साथ PTV ने दस्तावेज़ी फिल्मों और ख़बरों के ज़रिए पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा किया। इन्हीं दस्तावेज़ी फिल्मों और खुसूसी फ़ीचर्स की बदौलत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए खुसूसी कशिश का बाइस बने हुए हैं। PTV माशरती और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाला इदारा है। इसकी तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क के माजी और हाल की अक्कासी करते हैं बल्कि नाज़रीन में हुब्बुल वतनी और सकाफत से मोहब्बत का जज्बा भी पैदा करते हैं। अदनान शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मदारिस के तलबा ने हैदराबाद गैरेजन का दौरा किया। तलबा के लिए फायरिंग मश्क और असॉल्ट कोर्स का इनेकाद किया गया। तलबा ने बख्तरबंद गाड़ियों की सवारी की और हथियारों की नुमाइश भी देखी। GOC 18 डिवीज़न का तलबा के साथ मुलाकात भी हुई। तलबा और असातिज़ा की जानिब से अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। अनासीन बलूचिस्तान में ज़राअत के शोबे में फ़रोग़ के लिए हुकूमत मैदान में,
2022 के सैलाब में तबाह होने वाले वाटर चैनल्स को बहाल कर दिया गया है। इस इकदाम से बलूचिस्तान के 57,000 एकड़ खेतों को फायदा होगा। सालाना ज़रूरी पैदावार में 1 बिलियन का इजाफा होगा और हजारों किसानों की मदद होगी। इस बहाली से बलूचिस्तान में पायदार तरक्की को फरोग मिलेगा। ज़राअत की तरक्की के बायस बलूचिस्तान मौशी तरक्की की जानिब एक संग मील साबित होगा। और बलूचिस्तान के जिला दुक्की में दुक्की बचाओ तहरीक की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जिला दुक्की से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और कौमी परचम उठा रखे थे। शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली शुरका ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और FC के साथ यकजहती का इजहार किया। मुकर्रीन ने कहा कि दुक्की के अवाम पाक फौज, FC, पुलिस और लेविस के साथ शाना बशाना है। दुक्की के अवाम मुहिब वतन हैं और इन्हें मुल्क के खिलाफ वरगलाया नहीं जा सकता। 1971 की पाक भारत जंग तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा से दहशत गर्दी को फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुष्ट पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। बिहारियों की अमलाक और आबादियों पर हमला और कत्लेआम किया गया। मशरकी पाकिस्तान के 17 में से 14 इजला के मुहिब वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते मासूम लोगों, खुसूसन बिहारी कम्युनिटी के मुहिब वतन पाकिस्तानियों पर वो मजालिम ढाए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मुकीम भी इन्हीं मुतासरा पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बंगाल रेजिमेंट बगावत की और उसके साथ मुक्ति बाहिनी के रूप में इंडियन आर्मी मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुई। इनका निशाना सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के बिहारी थे। मुक्ति बाहिनी, इंडियन आर्मी, बंगाल रेजिमेंट और EPR ने बिहारियों की आबादियों पर हमला शुरू किया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्हें कत्लेआम किया। मशरकी पाकिस्तान के 17 अजला में से तकरीबन 14 अजला में जितने बिहारी थे उनको शहीद किया गया। कंचन नदी, बोगड़ा, मेमन सिंह, ढाका, राजशाही, पबना आज भी हमारे अज़्म और हमारे हौसले की गवाही दे रहे होंगे। इंडियन आर्मी ने बिहारियों की तैरती हुई लाशों को, इज्तिमाई कब्रों को, गली कूचों में सड़ी लाशों को इंटरनेशनल मीडिया को बावर कराया कि ये बंगालियों की लाशें हैं। लेकिन अगर उस लाशों को गौर से देखा जाए तो वो बिहारियों की लाशें थी, क्योंकि 5.5 लाख बिहारी शहीद किए गए। ये नाइंसाफी थी और अफवाज पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश थी। यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल से। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन और लेबनान पर हमले बदस्तूर जारी हैं। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से मस्जिद भी शहीद, जबकि एक इसराइली जरगमाली भी मारा गया। एक साल से जारी हमलों में अब तक 44,000 से ज़्यादा अफराद शहीद, जबकि 1,04,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। गजा में शहीद और जख्मी होने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने लेबनान के मशरकी इलाकों में फ़ज़ाई हमले करते हुए मज़ीद 24 अफराद को शहीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लेबनान के मशरकी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में मज़ीद 24 अफराद शहीद और 45 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने भी तेल अवीव में इसराइली फ़ज़ाई अड्डों को क्रूज़ मिज़ाइलों से निशाना बनाया। उधर आलमी फ़ौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। बरतानिया में तूफान के बायस हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हुए हैं। तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया है। साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और हजारों घर बिजली से महरूम हो गए।
برطانیہ اور ویلز میں 4000 سے زائد عمارتیں بجلی سے محروم ہو گئیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق درجہ حرارت میں اضافے، برف پگھلنے اور تیز ہوا کے سبب سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے 100 سے زائد سیلاب کی وارننگز اور الرٹ جاری کی ہیں۔ طوفان کے باعث ریل شیڈول بھی متاثر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیو کاسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ خبر آپ کو دیتے ہیں شری لنکا سے۔ شری لنکا کو $2.9 ارب کی بیل آؤٹ کی تیسری جائزہ رپورٹ منظور۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے شری لنکا کے لیے $2.9 ارب کی بیل آؤٹ کی تیسری جائزہ رپورٹ کی منظوری دے دی۔ ایک بیان میں عالمی مالیاتی ادارے نے کہا ہے کہ تقریباً $333 ملین جاری کرے گا، جس سے مجموعی فنڈنگ تقریباً $1.3 ارب تک پہنچ جائے گی۔ سری لنکا کے نئے صدر انورا کمارا دسانائکے نے کہا ہے کہ دسمبر میں ایک عبوری بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ دسمبر کے آخر تک قرضوں کی ساخت نو مکمل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریائی کمپنی ہنڈائی موٹرز نے فنی خرابی کی بنیاد پر امریکہ سے 1,45,000 سے زیادہ الیکٹریفائڈ گاڑیوں کو واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے بیان کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کو ڈرائیو پاور میں کمی کی وجہ سے واپس منگوایا گیا ہے۔ واپس منگوائی جانے والی گاڑیوں میں 2022 سے 2025 ماڈلز کی کچھ آئیوونک 5 اور آئیوونک 6 الیکٹرک گاڑیاں شامل ہیں۔ شیخوپورہ میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 139 میں 5 دسمبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواران کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم جاری ہے۔ PP 139 میں مجموعی طور پر 8 امیدوار میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اور وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کے بڑے بھائی رانا افضال حسین کی وفات کے بعد اس حلقے میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا طاہر اقبال امیدوار نامزد کیا گئے ہیں، جو اپنی انتخابی مہم بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی کوٹ عبدالمالک میں ان کا انتخابی دفتر عوام کی توجہ اور گہما گہمی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ PTV نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا طاہر اقبال کا کہنا ہے کہ یہ حلقہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر 5 دسمبر کو حلقے کے عوام مسلم لیگ نون ہی کے امیدوار کو ووٹ کی طاقت سے اپنا نمائندہ منتخب کریں گے۔ الحمدللہ ہر جگہ پذیرائی مل رہی ہے، ہماری ٹیمز بھی انرجیٹک ہیں، محنت کر رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ہم ادھر لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، یہاں پہ پروجیکٹس آئیں، ترقی ہوئے، خوشحالی ہو، روزگار ہو، اور دوسری طرف مار دھاڑ انتشار ہو، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو عوام خود موازنہ کر سکتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پورا ملک پھر سے ایک اس کیفیت میں ہے کہ سب کچھ بند ہے، لوگوں کے روزگار افیکٹ ہو رہے ہیں، دکاندار پریشان ہے، بزنس والے پریشان ہیں، ٹرانسپورٹ خراب ہوئی بھی ہے۔ انہوں نے صرف اپنے ایک ایجنڈے کے لیے پورے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو چیزیں چل رہی ہوتی تو یہ رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری جو اب عوام ہے وہ یہ سمجھ گئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے اور ہم نے اب بھی کرنا۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ مریم مختار شہید کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار شہید 24 نومبر 2015 کو پاک فضائیہ کے F-7 تربیتی طیارے پر معمول کی پرواز کے دوران میاں والی کے قریب فنی خرابی کے باعث جہاز تباہ ہونے کے نتیجے میں آبادی کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شہید خاتون پائلٹ مریم مختار کی 9ویں برسی پر ان کے جذبہ شہادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مریم مختار نے ثابت کر دیا کہ تعمیر اور دفاع وطن کی کاوشوں میں بیٹیاں کسی سے کم نہیں۔ مریم مختار نے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچا کر قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ مشہور اور معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو اپنے مداحوں سے بچھڑے ہوئے 2 برس بیت گئے۔ اسماعیل تارا، جنہوں نے کئی دہائیوں تک شائقین کو اپنی بے مثال اداکاری اور مزاحیہ صلاحیتوں سے محظوظ کیا، آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ مرحوم فنکار کی فن اداکاری پر نظر ڈال رہی ہیں کراچی سے سدرا فاطمہ اپنی اس رپورٹ میں۔ ممتاز مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا 16 نومبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1964 میں اسٹیج سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا، جبکہ 1975 میں انہوں نے PTV میں فنی سفر شروع کیا۔ 1980 میں PTV کے مشہور مزاحیہ خاکوں پر مبنی پروگرام 50-50 میں اسماعیل تارا نہ صرف گھر گھر پہچانے گئے، بلکہ اس ڈرامے کے ذریعے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو بھی چھوا۔
50-50 में न सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखाए बल्कि इस प्रोग्राम के कई खाके भी लिखे। 50-50 में इस्माइल तारा ने अपने साथी फनकार माजिद जहांगीर के साथ मिलकर मखसूस अंदाज में मनुआ और बबुआ के बेमिसाल किरदार तख्लीक किए। बबुआ, अरे का बात है मनुआ? अरे तुम्हें का बताएं, हमारे घर के बगल में जाना एक वकील ने नया दफ्तर खोला, तो हम चले गए उससे मिलने के वास्ते। तो क्या तुमने किसी घर में चोरी वोरी कर लिया? कहा कि चोरी वोरी कर लिया? तुम ऐसा कोई चोरी वोरी कर लिया? इस्माइल तारा ने पीटीवी और दीगर चैनल्स के अलावा मुताद्दिद फिल्मों में भी अपनी फन अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मारूफ फिल्मों में हाथी मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, चीफ साहब और हम किसी से कम नहीं शामिल हैं। इस्माइल तारा को फन खिदमात के एतराफ में 4 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। इस्माइल तारा ने मिज़ाह की दुनिया में जो शानदार काम किया उसकी निस्बत से उन्हें तादेर याद रखा जाएगा। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, शिमाली इलाकाजात से आने वाली ठंडी हवाओं के बायस लाहौर के दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ बारिश का इम्कान नहीं है, जिसके बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर खान, अपडेट कीजिएगा। बागों के शहर लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन फ़िज़ा अभी भी आलूदा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक गो के स्मोक की शिद्दत में कमी आई है और फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ये मुज़र सेहत है। इसलिए शहरी एहतियात करें, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि स्मोक के बायस जो है वो आँखों के इन्फेक्शन, गले और सीने के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि बुज़ुर्ग, बच्चे और बीमार अफराद जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और घरों से निकलने से परहेज़ करें। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात के मुताबिक स्मोक का बायस बनने वाले महरिकात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी हवाओं का रुख बदलने और शुमाली इलाका जहाज से आने वाली ठंडी और तेज़ हवाओं के बायस स्मोक की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन इसके साथ ही साथ दर्जा हरारत में भी कमी आई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आज लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हुकूमत पंजाब के मुताबिक स्मोक के तदारक के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। तमाम इदारे स्मोक के तदारक के लिए मुतहर्रिक हैं और स्मोक का बायस बनने वाले महरिकात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस्मान शौकत ने कहा है कि स्मोक सिर्फ माहौलियात नहीं बल्कि मईशत को भी मुतासर कर रही है। इस मसले पर काबू पाने के लिए तमाम मुतालिका इदारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। रावलपिंडी में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अथॉरिटी के नुमाइंदों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्मोक के बायस मौशी सरगर्मियों में रुकावट के साथ इंसानी सेहत को भी शदीद ख़तरात लाहिक हैं। डायरेक्टर EPA डॉक्टर मोहम्मद जैगम ने खिताब में कहा कि रावलपिंडी में माहौल दोस्त गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। तहम कोहिस्तान, बटग्राम, तोरगर और मानसेरा के अजला में चंद मकामात पर हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। सूबे के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मालम जब्बा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि तख्तबाई और बालाकोट में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबे में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। बालाई सिंध और पंजाब के चंद मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे।
آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل لہ -7 اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک غلط قدم اور گیم ختم۔ کشتی سے غیر قانونی سفر کا خطرہ مول لینا اپنی زندگی اور پیسہ ضائع کرنا ہے۔ آسٹریلیا ویزے کے بغیر آنے والوں کو کوئی ویزا نہیں دیتا ہے۔ آپ کو روک دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا اور آپ کو کبھی آسٹریلیا میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی دوسری باری نہیں۔ انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں کیچ ہو کر آؤٹ نہ ہو جائیں۔ قانونی راستہ ہی واحد راستہ ہے۔ غیر قانونی منتقلی کا صفر امکان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کا کہنا ہے سیکیورٹی پلان کا مقصد شرنگیزی کو روکنا ہے۔ کوئی روڈ بند ہے تو اس کے ساتھ ایک لین کو کھلا رکھا گیا ہے۔ سیکیورٹی پلان کا مقصد عوام کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ کسی کے پاس اسلحہ یا ممنوعہ چیز ہوگی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے ڈی چوک کا دورہ کیا ہے، پولیس اہلکاروں سے مصافحہ کیا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں بھرپور سیکیورٹی کا پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فہد جاوید سے۔ جی فہد، بتائے گا اس موقع پر آئی جی کا مزید کیا کہنا تھا اور اوور آل سیکیورٹی ارینجمنٹس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ جی، آئی جی اسلام آباد نے اب سے کچھ دیر قبل ڈی چوک پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے، جہاں پر ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے جو احتجاجی ہیں ان کا یہاں پر آنے کا پلان ہے۔ لیکن آئی جی کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ واضح ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی بھی احتجاج کرنے کو روکا ہے اور منع کیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اگر کوئی بھی احتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ غیر ممنوعہ اشیاء یا اسلحہ اپنے ساتھ لائیں گے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ جو راستے بند کیے گئے ہیں ان کے ساتھ پیرل جو دوسری لینز ہیں ان کو کھولا گیا ہے اور سی ٹی او جو کہ ٹریفک کے انچارج ہیں یہاں پر، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جائے۔ اور ایئرپورٹ کے بھی جو راستے ہیں وہ تمام راستے کھولے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کو جانے والی جی شاہراہ ہے وہ کھلی ہے۔ سری نگر ہائی وے کو بھی مکمل طور پر کھولا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج کے حوالے سے جو سیکیورٹی لگائی گئی ہے اور جہاں پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں، یہ عوام اور جو سرکاری املاک اور عوام کی جو املاک ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری پولیس کے پاس اور اسلام آباد انتظامیہ کے پاس ہے، تو وہ اس پر کاربند ہے۔ انہوں نے جو پولیس کے جوان ہیں ان سے بھی بات کی، ان کا مورال بھی دریافت کیا، کیونکہ گزشتہ 2 دن سے جو اسلام آباد پولیس ہے وہ سخت ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ سردی کے باوجود وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بھی ملاقات کی اور ان کا مصافحہ بھی کیا اور ان سے مختلف جو ان کے مسائل تھے وہ بھی سنے۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے ڈی چوک کا دورہ کیا ہے، یہاں پر ڈیوٹی پر جو پولیس اہلکار مامور ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے کچھ گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بھرپور سیکیورٹی کا پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی پلان کا مقصد شرانگیزی کو روکنا ہے۔